أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن، آج ہم اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق نمبر ہے 1۔ سب سے پہلے ہم کریں گے عربی زبان کا تعارف اور حروف الہجا۔ عربی زبان کو سعادت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن کریم اسی زبان میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ جامع اور فصاحت اور بلاغت اور وسعت والی زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربی زبان کو 3 بنیادوں کی وجہ سے پسند کرو۔ نمبر 1، میں عربی ہوں۔ نمبر 2، قرآن مجید عربی میں ہے۔ نمبر 3، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا فرض ہے، جو کہ عربی زبان میں ہے۔ تو جب تک ہم عربی زبان کو سمجھیں گے نہیں تو ہم قرآن و حدیث کو بھی صحیح سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو عربی زبان سیکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عربی زبان بولنے والوں میں ہم جا کے رہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ بول چال کریں، اس سے ہم عربی سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کرنا بھی ہر کسی کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے اس زبان کو سیکھا جائے، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہم سب کو آتی ہے، اور ہم سب نے پڑھا بھی ہوا ہے۔ اردو ہم پڑھنا بھی جانتے ہیں اور لکھنا بھی جانتے ہیں، اس لیے ہم عربی زبان کے جو ابتدائی باتیں ہیں اردو زبان کی مدد سے سیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اردو میں عربی کے تقریباً 80% الفاظ جو ہے نا موجود ہیں، لہٰذا ہم اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنا بہت ہی آسان ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک زبان سے جب دوسری زبان میں یہ الفاظ جاتے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، تھوڑے سے جو قوانین ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں سیکھنے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ ہمیشہ پہلے زبان وجود میں آتی ہے، پھر اس کے جو ہے ضرورت پڑنے پر قواعد اس کے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے زبان وجود میں آتی ہے، اس کے بعد اس کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عربی زبان کے قواعد بہت ہی مشکل ہیں، جس سے دیکھو وہ کہتا ہے کہ عربی زبان یہ گرامر تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس طرح حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی کو یہ مت کہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو آپ انکریج کریں کہ عربی زبان مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قواعد بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے اس زبان کو سیکھنا اور زیادہ آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ القمر میں ایک آیت بار بار جو ہے ہمیں فرمائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ عربی گرامر کی ضروری قواعد کو سمجھے بغیر قرآن کے ترجمے کو سمجھنا خاصا مشکل ہے۔ جب آپ اس کو گرامر کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، پہلے آپ کو گرامر معلوم ہوتی ہے، تو پھر جب آپ اس ترجمہ یاد کرتے ہیں تو آپ کو آسانی سے ترجمہ یاد ہو جاتا ہے، آپ کو بھولتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، ہم کس اسم کی بات کر رہے ہیں،
ये किस मुज़क्कर की बात कर रहे हैं या मुअन्नस की कर रहे हैं, हम एक की कर रहे हैं या दो की कर रहे हैं, ये यानी किसकी बात हो रही है। हम ग्रामर के लिहाज से जब उस चीज को समझ रहे होते हैं तो हमें फिर तर्जुमा याद करने में ना बहुत आसानी हो जाती है, फिर हमें भूलता नहीं है। वरना हम रट्टा ही लगाते हैं कि ऊपर से हमने लफ्ज देखना है, उसका तर्जुमा फिर हमने रट्टा मारना है, फिर बाद में हमें कुछ अरसा नहीं पढ़ेंगे तो हमें भूल जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रामर के लिहाज से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें जितना भी हम पढ़ेंगे हमें वो कभी नहीं भूलेगा, हमें याद रहेगा। तो ये फायदा है ग्रामर सीखने का। कुरान करीम को समझने और दूसरों तक ये इल्म पहुंचाने का जज्बा इंशाल्लाह हमारे लिए अरबी ग्रामर सीखने के काम को आसान कर देगा। कि अगर हमारे अंदर ये जज्बा होगा और हमने इस जज्बे को अपने अंदर कायम रखना है, उसको दिन ब दिन जोश व खरोश हमारा ज्यादा होगा, तो फिर ही हम इस इल्म को सीख सकते हैं। तो हमने अपने इस जज्बे को ठंडा नहीं पड़ने देना, बल्कि हर रोज नए जज्बे के साथ हर क्लास में हमने आना है और ग्रामर को सीखना है। और ये सोचना है कि हमने सीख के इसके बाद हमने इस इल्म को दूसरों को भी सिखाना है। और हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमारे काम को अल्लाह ताला आसान करे और हमें इस्तकामत दे, ताकि हम इस इल्म को सीखें। अच्छा जी। और इस इल्म का सीखना बाद से सवाब भी है और इबादत भी है। इसको इबादत समझ के करें कि जितना टाइम हम इसको पढ़ने में सीखने में लगाएंगे तो वो उसका हमें सवाब मिलेगा। क्योंकि हम अरबी जुबान सीख रहे हैं, अल्लाह अल्लाह की किताब का इल्म सीख रहे हैं, तो ये टाइम जो है ये हमारा इबादत में शुमार होगा इंशाल्लाह। इस राह में जो भी कोशिश होगी वो अल्लाह सुब्हाना तआला की रजा का बायस होगी। दुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे लिए इस ग्रामर को सीखने में आसानी फरमाए और ये कोर्स हम खैरियत के साथ मुकम्मल करें और दूसरों को सिखाने वाले, अल्लाह ताला हमें दूसरों को सिखाने वाला बनाए। तो हमें ये दुआ करनी है, ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी है। जब भी हमने पढ़ना शुरू करना है तो हमने ये दुआ पढ़नी है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इसका तर्जुमा है कि ए मेरे रब आसानी फरमा और मुश्किल ना फरमा और खैर के साथ मुकम्मल फरमा। तो इस दुआ को आपने बार बार पढ़ना है, तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स को जरूर कंप्लीट कर लेंगे। अरबी जुबान उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत आसान है। पहले वो चीजें सीखेंगे हम जो पहले से हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अरबी जुबान में हरूफ तहज्जी यानी अल्फाबेट बुनियादी हैसियत रखते हैं। यानी सबसे पहले हमें हरूफ तहज्जी सीखने हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, उर्दू में उसको हरूफ तहज्जी कहते हैं, और अरबी में उन हरूफ को हरूफुल हिजा कहते हैं। फिर इन हरूफ की मदद से अल्फाज बनते हैं और इन अल्फाज की मदद से जुमले बनते हैं। और हरूफुल हिजा की तादाद 28 है। कुछ जो मकातबे फिक्र हैं उनका उनका ख्याल है कि जो हमजा है वो अलग है, उसको अलग वो शुमार करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो कहते हैं कि हरूफ तहज्जी जो हैं, हरूफ हिजा जो हैं अरबी के, उनकी तादाद जो है 29 है। तो ये दो हैं, लेकिन आप 28 भी अगर लिखते हैं तो वो भी ठीक है। अगर आप 29 समझते हैं तो वो भी ठीक है। यानी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें, लेकिन इसको हम फिर अभी जब मैं बताऊंगी आपको कि हमजा और अलिफ में क्या फर्क है, तो फिर इंशाल्लाह आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी। अभी 1 मिनट में इसको जरा ऊपर करती हूँ। क्या हो गया इसको? 1 मिनट, 1 मिनट में दोबारा शेयर करती हूँ। ये ऊपर नहीं हो रही।
हरूफ तहज्जी तो आप सबको आते हैं। तो हरूफिल हिजा अरबी में उनको कहते हैं हरूफिल हिजा। तो हरूफिल हिजा में कौन कौन से हरफ आते हैं ये हम देख लेते हैं। अब इधर से क्लियर नहीं आ रहा, वैसे मैं आप इसको बता देती हूँ, बोल के ही आपको बता देती हूँ। तो आप लिख लीजिएगा कि हरूफिल हिजा कौन कौन से हैं, फिर मैं उनको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगी। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। इसको ऊपर करती हूँ तो वो पूरा ही ऊपर चला जाता है। दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, द्वाद, तौ, जा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वा, हा, या। अब आप कहेंगे कि हमजा तो आपने बोला ही नहीं। हमजा जो है एक यानी अभी मैंने आपको बताया कि कुछ जो हैं वो हमजा और अलिफ को एक ही तस्वर करते हैं, और जो हमजा को लग्स कहते हैं तो वो हमजा को गिनते हैं, और इसलिए तादाद जो होती है हरूफ हिजा की वो 29 कहते हैं। तो हमजा और अलिफ में फर्क क्या है? हमजा और अलिफ में फर्क ये है कि जब अलिफ के ऊपर हम कोई हरकत डाल देते हैं ना, जैसे सबसे पहले तो ये बताऊं कि हरकत 3 होती हैं, ठीक है। जबर, जेर और पेश होती है, और एक अलामत होती है जज़म। जबर को नसब कहते हैं, फतह कहते हैं, ठीक है। और पेश को दमा कहते हैं, रफा कहते हैं। उर्दू में हम पेश कहते हैं। अरबी में जो जेर होती है उसको हम कसरा कहते हैं, अरबी में जर कहते हैं, और उर्दू में जेर कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 हरकत होती हैं और एक अलामत होती है जज़म की। तो अगर अलिफ के ऊपर कोई अलामत हो या हरकत हो तो फिर वो अलिफ नहीं रहता, फिर वो हमजा बन जाता है। ठीक है। यानी अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? अगर तो अलिफ के ऊपर कोई अलामत है, कोई हरकत है, जबर जेर पेश में से तीनों हरकतों में से कोई ना कोई हरकत है, तो वो हमजा होगा। अगर जज़म भी है तो वो हमजा होगा। लेकिन अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, कोई अलामत नहीं है, तो वो अलिफ है। तो ठीक है। हरूफ और हरकत के मिलने से अल्फाज वजूद में आते हैं। अल्फाज 2 तरह के होते हैं, कुछ बामायनी होते हैं और कुछ बेमायनी होते हैं। यानी कुछ के मैनी मायनी कोई ना कोई मायनी होता है, और कुछ मायनी नहीं होते, बस वो अल्फाज ऐसे ही बोले जाते हैं। तो जो बामायनी लफ्ज होते हैं उसको अरबी में कलमा कहते हैं। आइए अभी ना हरूफिल हिजा को उर्दू से अरबी में तब्दील करने का असूल जानते हैं। तो इसका उसूल क्या है कि उर्दू में जिस हरफ की साउंड जो है, आवाज जो है, जब हम उसको पढ़ते हैं ए से आती है, उसको जब हम अरबी में बोलेंगे, अरबी में पढ़ेंगे, तो उसको हम आ में तब्दील कर लेंगे, ठीक है। जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं बे, तो जब हम अरबी में उसको बोलेंगे तो हम पढ़ेंगे बा। ते को ता, से को सा, ठीक है। कि जिस की आवाज ए से आएगी उसको हमने आ से बोलना है। और उर्दू हरूफ तहज्जी में जो हरूफ ए साउंड पर खत्म नहीं होते उनको अरबी में वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे उर्दू में पढ़ा जाता है। मसलन अलिफ, अलिफ को हमने अलिफ ही पढ़ना है। जीम, जीम को जीम ही पढ़ना है। दाल जाल, दाल जाल को दाल जाल ही पढ़ा जाएगा।
सीन शीन स्वाद द्वाद को भी सीन शीन स्वाद द्वाद ही पढ़ा जाएगा। यानी जैसे हम उर्दू में पढ़ते थे वैसे ही हमने अरबी में भी उनको बोलना है। ऐन गईन ही पढ़ा जाएगा। कॉफ काफ लाम मीम नून भी काफ काफ लाम मीम नून ही पढ़े जाएंगे, और वाव को वाव ही पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा सबक, पहला सबक के अरबी जुबान का तारुफ, हरूफुल हिजा, हमजा और अलिफ में फर्क और हरकत। आज के सबक में हमने ये सीखा, और हमने ये सीखा कि अरबी में हमने हरूफुल हिजा को कैसे पढ़ना है। जो हरूफ तहची हैं जब हम उसको अरबी में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, उसकी साउंड कैसे होगी, क्या फर्क होगा उनमें। और हमने ये पढ़ा कि हरकत 3 किस्म की होती हैं, फतह, कसरा, रफा। ठीक है ना। और रफा को दमा भी कहते हैं, और नसब को फतह भी कहते हैं। ये दो दो नाम हैं। ये जब आप आगे चले जाएंगे तो फिर आपको उसकी जो है ना फर्क पता चल जाएगा कि किस सूरत में हम कसरा बोलते हैं, किस सूरत में हम जर बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम रफा नसब जर बोले तो उसका मतलब क्या है, दमा फता कसरा बोले तो उसका मतलब क्या है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो हमें हर चीज की जो है समझ आती जाएगी। तो आज के लेसन में हमने पढ़ा कि हमारे कोर्स का नाम, मैंने बताया कि हमारे कोर्स का नाम है लिसानुल कुरान। और लिसानुल कुरान के मैनी मैनी क्या है। लिसानुल कुरान के मैनी कुरान की जुबान, कुरान की बुनियाद, कुरान की जुबान की बुनियाद क्या है। यानी उसका है कि कुरान की, मैंने क्या बताया कि कुरान की जुबान की बुनियाद यानी अरबी जुबान की बुनियाद हरूफुल हिजा है। और हरूफुल हिजा की तादाद बताई कि हरूफुल हिजा की तादाद कितनी है, 28, 28। और हरूफुल हिजा की अदायगी का असूल बताया कि जिन हरूफ के आखिर में ए की आवाज आएगी उनको आ की आवाज के साथ पढ़ना है। जैसे बे को बा, ते को ता। ठीक है जी। इसी और हरकत कितनी है, हरकत 3 है, और अलामत सुकून है। हमजा और अलिफ में फर्क भी बताया कि अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत लगी होगी, जबर जेर या पेश या जज़म, तो वो हमजा होगा। अगर हरकत नहीं होगी तो अलिफ होगा। लफ्ज कैसे बनते हैं, हरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनते हैं। ठीक है। लफ्ज कितनी किस्म के होते हैं, लफ्ज 2 तरह के होते हैं, बामायनी और बेमायनी। बामायनी लफ्ज को ग्रामर की इस्तिलाह में कलमा कहते हैं। बामायनी लफ्ज को, और जो बेमानी लफ्ज होता है उसको मोहम्मल कहते हैं। और कुरान पाक में हर लफ्ज कलमा है, यानी हर लफ्ज का कोई ना कोई मतलब है। कुरान पाक में कोई भी बेमानी लफ्ज नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ कलमा ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने तो कुरान की जुबान सीखनी है। तो कुरान में कोई भी बेमानी लफ्ज नहीं है, तो हमने मोहम्मल को नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ कलमा ही पढ़ना है। ठीक है। कलमे की आगे जाके हम कलमे की अकसाम पढ़ेंगे। तो आज का जो है, आज के लिए इतना ही, आज का लेसन इतना ही था, अरबी जुबान का तारुफ और हरूफुल हिज्जा। तो अभी मैं दुआ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ابھی میں میٹنگ لیو ہی کر رہی ہوں کیونکہ وہ نہیں ہو رہی، اس کو فنش نہیں ہو رہی. تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا، کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے، اسی لنک سے دوبارہ جوائن ہو جائیے گا.